Good evening. Now I'm recording my, this is like NPO lecture 2. Now here we'll be studying fund accounting and some basic different types of funds, restricted fund, unrestricted funds. So let's see, come over what's restricted and what's unrestricted funds. Okay, now let me wear a glass first. So that's my accessory. This is only using this, I'll be writing on my graphic tablet. So without it, I'll get a very friction. So I use the friction, I need to wear this glass, otherwise I can write as fast as I can. Just kidding. My mic has not been delivered. That's why I've been using this like headset, microphones headset. Now let's start. So let's start with fund-based accounting. You can see here, fund. What do you mean by fund? Fund means amount received which is set aside by NPO for a specific purpose. If you don't understand fund in terms of this, then I'll tell you about, like, for example, many of you are planning to go abroad. So if you go abroad, now that will be a huge investment for your parents. So what they do, they set aside certain funds for your future abroad studies. They set aside certain funds for your future, like might be some, they want to buy a house, they want to buy a car, they want to buy something for you. Sometimes, like many people, keep a fund set aside for their marriage, something like that. So we have to see here. The fund means what? Fund received which is set aside by NPO for a specific purpose. Why I'm talking about NPO? Because we are studying NPO chapter. So we will be studying everything in terms of NPO. So fund along with income earned on the fund can't be used for general purpose. जैसे कि I have a fund for, you can say, building. So I have done, there was fund here. I thought, why shall I keep the idle funds? What I can do, I can make an FDA in the bank, and must be receiving an interest on that investment. So that interest will also be added to that fund. And even we cannot use that interest for general expenses, right? Shown on liability side, it is shown like, now we talk about the accounting treatment. What are the accounting treatment? So this is my accounting treatment. Shown on liability side of the balance sheet. Further income, donations are added to these funds in balance sheet, whereas expenses, what I have written that in red color to highlight it, whereas expenses are deducted from fund. तो हम इसका मतलब क्या करेंगे? मतलब कि बैलेंस शीट में आपने फंड देखना है. फंड कभी भी इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाता है. देयर इज वन एक्सेप्शन केस. तो वो हम क्वेश्चन करते हैं समझे कि व्हाई डूइंग सो यू डोंट अंडरस्टैंड. सो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड व्हाई डूइंग क्वेश्चन. ये बेटा अपना होता है लायबिलिटीज, ये होता है रुपीज, ये होता है एसेट्स, और यहाँ पर लिखते हैं रुपीज अगेन. अब हम क्या करेंगे इसमें? वी कैन सी हियर कि यहाँ पे लेट्स से मैंने बिल्डिंग फंड लिखा. आई एम राइटिंग बिल्डिंग फंड. So building fund का जो main amount है आप inner column में लिखिए, because we have calculations over here. So if you receive further, आपको और donations मिलते हैं. आपको donation अगर normal donation है तो इसमें नहीं आएगा, but donations for building करके आएगा आपको. आप जो building बनाना चाहते हैं उसी building के लिए और भी donation मिलेगा आपको, तो आप वहाँ पे ऐड कर देंगे. और उसके बाद आपने building के expenses करे भाई, you have done certain expenses like something कुछ उसमें यहाँ पे minus कर देंगे. So जो net amount है वो यहाँ दिखेगा. बट बिल्डिंग, जैसे अभी मैं इसी के बारे में बिल्डिंग फंड के बारे में आगे पढ़ने वाला हूँ, वो मैं आपको बताऊंगा. तो वी अंडरस्टैंड दैट फंड में क्या होता है कि जो भी रेवेन्यू आ रहा है यहीं पे ऐड हो रहा है. रिटर्न वगैरह, फर्दर इनकम, डोनेशंस आर एडेड टू दिस फंड. जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग फंड है, मैंने बिल्डिंग फंड का इन्वेस्टमेंट कर दिया, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट. अब इस फंड से मेरे को इंटरेस्ट मिल गया भाई, तो मैंने इंटरेस्ट को क्या किया, ऐड कर दिया इसी में. मेरे को इंटरेस्ट सेपरेटली नहीं दिखाना क्योंकि इंटरेस्ट इसी फंड से रिलेटेड है. आई विल बी एडिंग इट सेम. इसको अगर आपने इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम में लिख दिया तो यू विल वायलेट द टर्म्स ऑफ द फंड अकाउंटिंग. एंड डूइंग अकाउंटिंग इन दिस वे इज कॉल्ड अकाउंटिंग ऑन द बेसिस कॉल्ड फंड अकाउंटिंग. ये बेटा 3 से 6 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है और एक ना एक सेट में आएगा. सो व्हाट आई एम टेलिंग इज लाइक फिक्स क्वेश्चन. आप अपने टेस्ट में देखो, यूट्यूब में देखो, यहीं से आएगा, कहीं से नहीं आएगा. आप चेक भी कर लो, यहीं से आएगा. So accounting of asset
क्रिएटेड आउट ऑफ स्पेसिफिक फंड, अगर मान लो हमने किसी फंड से एसेट क्रिएट किया, ओके, मतलब बिल्डिंग फंड है हमारा और हमने बिल्डिंग फंड से एक एसेट क्रिएट कर लिया। मेरा एक है बिल्डिंग फंड और मैंने बिल्डिंग फंड से एक एसेट क्रिएट कर लिया, ओके, एसेट क्रिएट कर लिया। सो बिल्डिंग फंड से एसेट क्रिएट करने का मतलब क्या हो, ये कह रहे हैं इफ एन एसेट इज क्रिएटेड आउट ऑफ स्पेसिफिक फंड, बिल्डिंग फंड स्पेसिफिक फंड किसी बिल्डिंग के लिए यूज होगा और इससे हमने एक एसेट क्रिएट किया, क्या किया, बिल्डिंग बनाया। तो ये बोलते हैं कि अमाउंट इनकर्ड ऑन एसेट, जो एसेट पे खर्च हुआ है, इज ट्रांसफर टू द कैपिटल फंड। बेटा आप बिल्डिंग फंड से माइनस करो और लिखो ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, जितना आपने बिल्डिंग बनाने में खर्च करा है, और वो कैपिटल फंड में बेटा आप जाके ऐड लिखोगे और लिखोगे ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड। इस पे हमारा एक क्वेश्चन भी है, मैंने इस पे एक अलग से क्वेश्चन डाला है, हम वो क्वेश्चन भी करेंगे, जो मेरा एनपीओ का इंफो क्वेश्चन है उसमें हम यही सब करेंगे। सो बेटा दिस इज लाइक आर अकाउंटिंग ऑफ एसेट क्रिएटेड आउट ऑफ स्पेसिफिक फंड, उसका एग्जांपल मैंने आपको बताया। अब आते हैं, देखते हैं फंड में कितने कैटेगरीज होते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बहुत मतलब अच्छी होता है इसमें कैटेगरी में रीड करने के लिए। इसमें कुछ कैटेगरीज आर ओनली फॉर एमसीक्यू और डेफिनेशन पर्पस, सो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन सो मच लाइक ये क्या है, एकदम डीपर नहीं जाना है आपको बहुत सिंपल वर्ड में मैंने इसमें सारे अनवांटेड वर्ड्स फिल्टर कर दिए। I have made it in one word, so apt and usable and suitable for MCQ and one mark question. So let's see here. Category of funds, unrestricted fund, the use of which is not restricted. भैया किसी भी पर्पस के लिए यूज करो, लाइक हमारे बिजनेस में होता है कैपिटल फंड, जनरल फंड, सो वी यूज दिस फंड फॉर एनी पर्पस। नाम ही क्या, जनरल पर्पस, किसी भी के लिए आपने अपने एनपीओ को चलाना है, ये फंड यूज कर लो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, नो रेस्ट्रिक्शन। अब रेस्ट्रिक्शन लगाता कौन है, रेस्ट्रिक्शन लगाने वाले होते हैं हमारे ये मैनेजमेंट वाले, ठीक है। दूसरा, जो जिसने डोनेशन किया उसका हक बनता है भाई, वो डोनेट कर रहा है आपको, वो चाहता है कि उसका जो फंड है वो स्पेसिफिक पर्पस में है, वो बिल्कुल कर सकता है, हक है। मैनेजमेंट बिल्कुल कंडीशन लगा सकते हैं, मैनेजमेंट को लगता है कि नहीं यार ये मिसयूज हो सकता है, हम लोग क्या करते हैं अपने, मैंने आपको लास्ट आई थिंक लेक्चर में भी यही बोला था कि वहां पे हमारा लाइक फॉर एग्जांपल हम स्पेसिफिक पर्पस में टूर्नामेंट कराए, तो वो टूर्नामेंट का फंड है, आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलो हम कुछ रेस्ट्रिक्टेड फंड्स पढ़ते हैं कैसा होता है। गवर्नमेंट से जैसे बहुत सारे एनपीओज होते हैं, उनको गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलते हैं, तो अब देखते हैं कैसे हम करेंगे इसको। So receive from government for the specific purpose, it will be treated as a liability. देखो भैया मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, सीधी सी बात, स्पेसिफिक पर्पस। अगर आपको स्पेसिफिक पर्पस के लिए लेना है ग्रांट, तो वो आपका लाइबिलिटी होगा। अगर कोई रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने नहीं लगाया तो उसका फ्रीली मजे से जैसे खर्च करना करो, दैट विल बी ट्रीटेड एज एन इनकम इन एनपीओ, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। कोई कंडीशन नहीं है भाई, मजे से यूज करो, कोई टेंशन नहीं है। अब क्या है आगे, आगे है हमारा एंडाउमेंट फंड। एंडाउमेंट फंड नाम से ही है, फंड अराइजिंग फ्रॉम, नाम से डेफिनेशन नहीं आएगा, उसके लिए ये चीज मैंने बना दिया, वीडियो में लिख दिया, क्योंकि आई नो दैट मेरे स्टूडेंट बहुत टैलेंटेड है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाया है, सम पीपल आर सेल्फ ड्रिवन, बट मैं कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ वो बहुत टैलेंटेड है, वो उनकी क्लास में अटेंडेंस से ज्यादा एब्सेंस होती है, मैं ए भी ज्यादा लगाऊंगा, पी कम लगता है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाया है कि प्लीज थोड़ा कर लो। फंड अराइजिंग फ्रॉम गिफ्ट, द इनकम ऑफ व्हिच इज डिवोटेड टू अ स्पेसिफाइड पर्पस। अच्छा, हमें किसी ने गिफ्ट दिया, हमें एनपीओ है, हमें किसी ने कुछ गिफ्ट दिया, और उस गिफ्ट से हमने जो इनकम अराइज हो रही है, आ रही है, उसको हमने एक डिवोटेड टू अ स्पेसिफाइड पर्पस। तो कितने लोग ऐसे कंडीशन लेते हैं, भैया ये लीजिए, ये हम दे रहे हैं आपको गाड़ी, इस गाड़ी से जो भी इनकम आएगी वो आप इस अनाथालय को दे देंगे, ठीक है, या इस आप ऑर्फनेज को दे देंगे, मतलब अनाथालय, इस ओल्ड एज होम को दे देंगे, वृद्धाश्रम को दे देंगे, तो इस सारी चीजों को होता है, तो वो एंडाउमेंट फंड है, ये तो स्पेसिफिक पर्पस है, लाइबिलिटी होएगा भाई। नाउ कमिंग टुवर्ड्स एन्युटी फंड। एन्युटी नाम का मतलब होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भी चीज सीरीज में, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली समथिंग, वो एन्युटी होता है। आप एक सीरीज में कर रहे हैं, मेरे को मैंने एक जगह पैसे मंथली 1000 रुपीज, तो उसको हम एन्युटी बोलते हैं।
टेक्निकल वर्ड है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो एन्युटी क्या एन्युटी है भाई? It is established when an NPO received asset from donor with a condition to pay specified amount periodically to designated beneficiary. It is continued till lifetime of beneficiary. मतलब हमने कुछ डोनेट किया, हमने एनपीओ को बोला ठीक है भाई, मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मेरा जो ये जगह है इससे जो भी इनकम आएगा, जो भी आएगा वो आपको हर एक महीने मिलता रहेगा एज अ डोनेशन के फॉर्म में। तो वो एक एन्युटी काइंड ऑफ, जैसे भैया मैं गया, ये चीज हमारे बच्चे की हो जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा। तो उसके लिए मैंने लिखा क्या, लाइफ टाइम बेनिफिशियरी, उसके बाद नहीं मिलना इन सब चीजें। फंड है, रिस्ट्रिक्टेड है, लाइबिलिटी में, इसका न्यूमेरिकल यूज नहीं है, एंडाउमेंट फंड का न्यूमेरिकल यूज नहीं है हमारे बुक में, मैंने पूरा क्लियरली अच्छे से देखा है, तो मैं भी ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब आगे हमारा लोन फंड। लोन फंड क्या हुआ है, हमने एक सेटअप किया भैया, हम एक एनपीओ है, हमें लगा गरीब लोग हैं बेचारे, लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं, उनको फिर उनके पास पैसा नहीं होता। आई थॉट कि चलो यार हम लोग एनपीओ बनाते हैं जो थोड़ा माइक्रो फाइनेंसिंग करता है, छोटे लोग को ऐसे बांट देते हैं हम लोग कुछ, क्योंकि वो लोग, अगर मैंने आपको, मैं इकोनॉमिक्स में ये चीज बताता हूँ, इफ वी बिकम माइजर इंडिया विल बिकम पुअर। तो वी हैव टू स्पेंड, खर्चा करो, पर खर्चा ऐसी चीज में करो ना इनकम जनरेट हो, राइट? खर्चा ऐसे करो, आप चैरिटेबल रहो, आई एम नॉट टेलिंग दैट, बट इनकम जनरेशन करो से। तो खर्चा करना जरूरी है। आप पढ़ोगे नहीं, मैं नहीं अर्न करूंगा, मैं नहीं अर्न करूंगा तो फिर मैं फोन नहीं करूंगा, इंटरनेट यूज करूंगा, वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो जाके आपके पापा भी अनएम्प्लॉयड होंगे। क्यों? सब इंटरलिंक्ड है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सब इंटरलिंक्ड है। तो लोन देना चाहिए, ये लोन देते हैं फॉर हायर स्टडीज, दे देते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो जॉब करते हैं, उनकी वाइफ कुछ नहीं कर रही है, लोन है, हम उनको सीन दे सकते हैं, वहां पे वो लोग कुछ काम कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी लाइक फिक्स्ड एसेट फंड। अब ये तो बहुत सिंपल है, बिल्डिंग फंड अभी मैंने बात करी। क्या होता है कि जैसे मान लो हम लोग भी करते हैं कि फंड ईयरमार्क फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, हमने क्या किया, हमें ये फंड मिलाया और हम इससे फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करेंगे और हमारा एनपीओ का काम चलेगा। तो ये फंड है, ये स्पेसिफिक फंड है, लाइबिलिटी में ही आएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। Now prize fund is a fund set up to use for distribution as prizes say for achievements or contribution to welfare society। तो हम लोग ऐसा प्राइज फंड भी कर देते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं प्राइज फंड में, मैं आपको ये बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का ये है कि देखो हम लोन लेंगे, हमारा नाम होना चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए। तो जैसे मैंने लिया भाई बिपिन ठाकुर अवार्ड, बिपिन ठाकुर अवार्ड मैंने डोनेशन दिया, तो बच्चों को अवार्ड दोगे तो आप मेरे नाम से दो, बिपिन ठाकुर अवार्ड। मेरे को फील आएगा, प्राउड फील होएगा, हमारे बच्चों को भी, अरे पापा आपके नाम से अवार्ड मिल रहा है, स्कूल गए थे तो अच्छा लगा, गुड। सो इफ यू डोंट यू कैन पुट दैट कंडीशन, हम तभी, और प्राइज में ही भी होगा, बच्चों को प्राइज वाइज देने के लिए ही हम ये फंड का यूज करेंगे, अदर देन दूसरे पर्पज से यूज किया तो ये मिस यूज हो जाएगा। आपकी जब ऑडिट होगी तो आपकी खैर खबर ली जाएगी, ठीक है? इससे थोड़ा बच के। नाउ बेटा मैं ये थोड़ा बेसिक क्वेश्चन आपके लिए एनपीओ के लिए, तो ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है, जैसे मैंने कुछ नया नहीं किया, तो इस बुक के क्वेश्चन में हम कुछ काम कर रहे हैं, तो मैं आपका 1 2 3 सबका काम कर रहा हूँ। अब देखो बेटा आंसर 1, आंसर 1 में है टूर्नामेंट फंड 2 लाख, एक्सपेंसेस 60,000, रिसीट फ्रॉम टूर्नामेंट 80,000। तो बेटा देखो बुक में ना इसको वर्ड्स में लिख दिया, आई डोंट लाइक दैट। आप इसको फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन दिखाओगे या बैलेंस शीट, मतलब एज ऐड करके दिखाइए कि कैसे आएगा, तो बैलेंस शीट में दिखाओ। बुक में इसको वर्ड्स में लिख दिया, व्हाट इज दैट वर्ड्स राइटिंग इन लाइक वेस्टिंग ऑफ टाइम। आई फील दैट आप ऐसे इसको दिखाएं। अब कुछ टीचर्स होते हैं जो गाइड रखते हैं, आप अपना कॉन्सेप्ट लगाओ। इफ वी पीपल विल नॉट ब्रिंग क्रिएटिविटी कि सर ऐसे कर सकते हैं, ऐसा शॉर्ट है, ऐसा है, तो फिर तो हो गया, फिर तो आज के डेट में हम अभी भी बैलगाड़ी में होते हैं। तो ब्रिंग योर क्रिएटिविटी, गिव मी सजेशंस, ब्रिंग सजेशन, यू ऑलवेज वेलकम, इफ आई लाइक आई अप्लाई योर्स, खत्म बात। अब बेटा इसमें हमने किया टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट फंड। अब टूर्नामेंट फंड जो है वो हो गया 2 लाख रुपए।
लाइबिलिटी साइड मैंने बोला स्पेसिफिक फंड है, टूर्नामेंट से है। अब बेटा इसमें आपका रिसीट्स है, रिसीट्स फॉर टूर्नामेंट। अच्छा हमने टूर्नामेंट कराया तो टिकट विकेट के पैसे मिलेंगे, लाइक बीसीसीआई आल्सो एन एनपीओ, फीफा इज आल्सो एन एनपीओ, सो बहुत पैसा है बट ये सब एनपीओ। Receipts from the tournament is 80,000. So now you have your fund stands to 2,80,000. बट भैया टूर्नामेंट कराओगे तो खर्चे भी तो होंगे, वो आपका एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस है हमारा 60,000, तो 60,000 हम माइनस करेंगे। थोड़ा मेरा गला खराब है, माइट बी यू हैव अ साउंड प्रॉब्लम, माइक नहीं है, but please bear with this. Definitely the moment mic comes will definitely get to very good quality. Now 2,20,000 is my answer. So this is how it will be presentation. ये हमारा presentation है, I think ये आप लिख लोगे। तो मैं अब इसका क्वेश्चन का दूसरा पार्ट करता हूँ। दूसरा पार्ट में है हमारा आंसर 2। आंसर 2 में ये लिखा है भाई कि बिलियर्ड मैच एक्सपेंसेस, क्या मैच फंड है यहाँ क्वेश्चन में लिखा? नहीं लिखा है। ये सारे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन, आप लिंक मत करना प्लीज। बहुत सारे बुद्धिमान बच्चों को लिंक करने की आदत है, मैं घबरा जाता हूँ ऐसे बच्चों से। तो पूछ लिया करना चाहिए ना उनको लिंक करने के लिए। ये सब डिफरेंट है, डिफरेंट है, ठीक है। मतलब वीडियो में ऐसे बनाता हूँ कि डाउट्स नहीं आना चाहिए, फिर भी अगर डाउट्स आएगा यू आर वेलकम, भेजो मुझे, भेजो मुझे, बट क्वालिटी डाउट्स होनी चाहिए। अब जैसे मैं एक बार क्लास कर रहा था, सर पढ़ा रहे थे बीएसटी, एक कुछ लोग होते हैं जिनको डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। एक्सक्यूज मी सर, व्हाट इज बीएसटी, बिजनेस स्टडीज क्या होता है? I believe that you meet someone in class 12, you definitely know dictionary meaning of business. तो मतलब don't ask such questions होने चाहिए जो आप नहीं समझ रहे। So फाइनेंशियल मार्केट क्या है, डीमैट अकाउंट क्या है, मेरे को खुशी होगी बताने में, मजा आता है बताने में। क्वेश्चंस अच्छे लाया करो, मतलब सॉरी मजा आया था बात करते करते, मैंने एक्सपेंडिचर को इनकम लिख दिया, होता है ऐसा, पार्टी माफ कीजिएगा। एक्सपेंडिचर और यहाँ पे हो गया हमारा इनकम। बेटा नंबर 2 में सिर्फ क्या लिखा है, मैच एक्सपेंसेस। लो भाई मैंने भी लिख दिया बिलियर्ड मैच एक्सपेंसेस। जब फंड नहीं है तो खर्चे को खर्चे ही मानेंगे ना, जब फंड होता है तो खर्चे को फंड में से माइनस करेंगे। यही तो हमने फंड अकाउंटिंग की थियरी में पढ़ा था पीछे। थोड़ा मैं जल्दी पढ़ता हूँ, आप मेरे वीडियो स्लो करके भी देख सकते हैं, यूट्यूब में ऑप्शन है, वीडियोस में यही तो फायदा है। नाउ बिलियर्ड मैच एक्सपेंसेस इज 25,000 हो गया। 2 देखो बहुत आसानी से, क्या टफ है ये चीज? टफ है तो बता दो मेरे को, हम भी छोड़ देंगे पढ़ाना अकाउंट्स। अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फेल होना मुश्किल है थोड़ा, मतलब आई बिलीव, मैं नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि मेरे को हो सकता है मैं 10-15 सालों से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे ये बहुत आसान लग रहा है, दूसरे को टफ लगता है। मुझे मशीन गन चलाने नहीं आता तो मुझे टफ लगेगा, जिसको आता है उसको आसान लगेगा। मुझे पबजी खेलना नहीं आता, मुझे टफ लगता है, बच्चों को आसान लगता है, माइट बी। लेट्स सी, कम टुवर्ड्स थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में भाई ये कह रहा है प्राइस फंड है, इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड है, प्राइस पेड ब्ला 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 है। चलो फटाफट बैलेंस शीट में हम कर लेते हैं, फिर मैं क्योंकि क्वेश्चन दोबारा रीड करूंगा। आप बैलेंस शीट लिखिएगा एज एट या एज ऑन जब भी होता है, ये नहीं लिखोगे तो भाई टीचर लोग भी आजकल चढ़ जाते हैं, क्योंकि आप लोग टीचर की खबर लेते हैं स्कूल में, तो फिर टीचर का भी तो आता है ना, हर एक का दिन आता है। 12th में तो पूरा दिन ही है, आपके इंटरनल मार्क्स उनके हाथ में, एक मार्क कम कर देंगे 99 पर अटक जाओगे। तो आप एक बार ढंग से प्लीज, आप एक बार अच्छे से इज्जत से रिस्पेक्ट से टीचर के साथ बिहेव करें, टीचर की तरह बी फ्रेंडली बट रिस्पेक्ट एवरीवन। अब भाई देखो प्राइस फंड है, हम लोगों ने कर लिया है, तो चलो जी प्राइस फंड। प्राइस फंड कभी भी अंदर लिखें अमाउंट को, क्योंकि आप इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्टली। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा पता नहीं क्या खाते हैं, भूल जाते हैं, मेन कॉलम में लिख देते हैं। मैं बार बार यही बोलूंगा और मेरे को पता है, मेरे को तब भी यही डाउट है, इसको बाहर लिख सकते सर, ठीक है। अब आगे देखते हैं भाई, आपका प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है। अच्छा तो प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट भी है, तो प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट फटाफट लिख देते हैं, फिर इंटरेस्ट भी लिखते हैं, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट।
और वो आ गया आपका यहाँ पे 1 लाख रुपीज ओनली। थ्री, आई थिंक, सॉरी सॉरी, इट वाज 80,000, आई विल सी दैट, सॉरी, 80,000। एक प्राइस फंड इन्वेस्ट, हमने 80,000 को क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। मैं इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो अब खाली फंड रखे रहना इज नॉट गुड आइडिया। व्हाट यू कैन फंड इन्वेस्टमेंट, कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, देखो इंटरेस्ट मिला भी इनको, तो क्या मिला भाई इनको, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। और ये जो इन्वेस्टमेंट है इस पे इंटरेस्ट मिला, तो ये ऐड करते हैं। कितना इंटरेस्ट मिला भाई आपको, आपको मिला 10,000, बढ़िया है। व्हाट, 1,10,000 अब हमारा फंड है। फिर देखा हमने यार इसने पे भी किया है कितना, 20,000, तो चलो भाई माइनस करते हैं आपका 20,000, प्राइस इज पेड। आप लिखना पूरा, मैं कभी बार इंटरेस्ट ऑन, आप पूरा लिखना कभी भी एग्जाम में, बिकॉज टीचर कैन गेट अनॉयड बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। सो 20,000 अब आप माइनस कर देंगे, इट्स 90,000। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 3। अब क्वेश्चन 4 कर रहे हैं, चलो भाई क्वेश्चन 4 करते हैं। थोड़ा सा मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ जाता है, अब थोड़ा सा साइड करेंगे, अब तो ये जाएगा इधर। क्वेश्चन 4, आओ जी, अब आपका नंबर 4 हो गया। नंबर 4 में अब देखो यहाँ पे बोल रहे हैं रिसीट्स एंड रिसीट्स फ्रॉम सिनेमा शो टिकट्स, एक्सपेंसेस ऑन सिनेमा शो, मतलब ये क्या है भाई, तो इसमें तो ये तो कोई पर्पस, फंड वंड सिनेमा का नहीं है। चलो भाई इनकम एक्सपेंडिचर बना दो, वहां पे डाल देते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप अनसॉल्व में भी जाओ, सॉल्व में जाओ, क्वेश्चंस आर ऑलवेज सेम। सो आई वुड से दैट घबराना नहीं। आप देख लो भाई, इसमें इनकम ज्यादा है, रिसीट ज्यादा है, एक्सपेंसिव, अच्छा रिसीट ज्यादा है, बाई साइड में लिख लो दोनों, थोड़ा एक ही साइड रिलेटेड चीजों को साफ लिखोगे, बनने को समझ। क्योंकि हमारी एक चीज है, हमने 11th में पढ़ा था, क्वालिटेटिव फीचर्स ऑफ अकाउंट्स, रेलेवेंट, अंडरस्टैंडेबिलिटी। अगर मैं अलग अलग जगह लिखूं, यहाँ लिखूं सिनेमा, यहाँ लिखूं, ये समझ नहीं आता इन्वेस्टर्स को, या जो रीड कर रहे हैं इसको, उसको समझ आना चाहिए। जब आप उल्टा पुल्टा करोगे तो आपको बुला देंगे, नहीं हाँ जहाँ जहाँ स्कूटनी के लिए आ जाते हैं, बैठ जाते हैं हम लोग। सो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय receipts from cinema tickets, cinema tickets। तो भाई कितना रिसीट्स अंदर ही लिखे इसको फिर से, क्योंकि आपका, आपने यहाँ पे एक्सपेंसेस भी करा है, आई थिंक इट्स 50,000 दैट 50,000। नाउ लेस is your expenses on the same, so I'm writing only expenses, you hope you understand this is expenses, so expenses is 15,000, so 50 minus 15 is 35,000। डन, हो गया क्वेश्चन 4, कौन सी बड़ी बात है, हो गया ऐसे। अब हम इसको क्वेश्चन 5 को कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 में अभी पीछे हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर हम किसी फंड से एसेट बनाते हैं तो उसको ट्रांसफर कर दो कैपिटल फंड में। चलो उसको समझने का टाइम आ गया, तो चलो अगर आप अभी भूल रहे हो तो इसको बैकवर्ड जाओ मेरी वीडियो में, उस कॉन्सेप्ट को दोबारा रीड करो और फिर दोबारा इस नंबर 5 में आओ, क्योंकि स्मार्ट बनने से कुछ मिलना तो है नहीं, राइट। चलो अब आई एम डूइंग नंबर 5, लेट्स सी नंबर 5 में expenditure on construction of the building during the year was 6 lakh, the construction work in progress and yet not completed, we will find as on 31st March 2018। मैं कभी कभी जब डेट गिवन हो तो मैं भी बहुत कंफ्यूज होता हूँ, पहले हम देख लेते भैया क्वेश्चन में क्या गिवन है, कब की बात कर रहे हैं, किस सीजन किस महीने का बनाना है। तो अब हम देखेंगे, ये भाई मुझे दिखने से लग रहा है 1418 और काम बैलेंस शीट दिखाना है 31/3/19 का, शायद वही है मेरे हिसाब से, हाँ वही है। क्योंकि आप देखो कैपिटल फंड इस तरीके का गिवन है, 31st मार्च और 1st अप्रैल सेम थिंग, और 30 मतलब और बीच में हमारा हुआ है, तो ये ऐसे ही है। चलो बैलेंस शीट बनाते फटाफट आप इसका भी, और आप लोग, मैं जब तक इतना बोल रहा हूँ आप लोगों ने बैक फॉरवर्ड करके देख लिया हुआ कॉन्सेप्ट। चलो जी हम लोग अब पूरी बैलेंस शीट इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको समझ आए अच्छे से। फिर से लाइबिलिटीज, अमाउंट, assets, amount,
अब हम इसको करते हैं ग्रीन पेन से। क्या है, सबसे पहले मुझे दिखना है, पहले क्वेश्चन रीड कर ले किसको कैसे लिखना है। जनरली मेरे को दिखा कैपिटल फंड है, कैपिटल फंड आप ऊपर लिख लेते हैं उसको, कैपिटल फंड। कैपिटल फंड है मेरा 20 lakhs। ओके, जगह छोड़ देते हैं क्योंकि मैंने आपको बोला इसमें कुछ ट्रांसफर हो रहा है, तो हम जगह छोड़ देते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बिल्डिंग का, ग्राउंड में बैठने के लिए। कंस्ट्रक्शन वर्क नॉट येट कंप्लीटेड एंड मेरे पास पहले से फंड में है 8 लाख। ओके, BILI फंड। हाँ, प्रोविडेंट फंड जो है मेरा ये 8 लाख है, अंदर लिखेंगे कैलकुलेशन है इसमें। और आपको 10 लाख का डोनेशन भी मिला है, तो ऐड कर लेते हैं डोनेशन। मेरे को डोनेशन, और ये स्पेसिफिक डोनेशन है क्योंकि सिर्फ पवेलियन बनाने के लिए मिला है। तो अब आपका ये जो फंड हो गया भाई, ये 18 लाख का फंड है। और अब आपका क्या हो गया इसमें देखो, इसने मेरे को बोला कि 6 लाख तो हमने खर्च दिया एक एसेट बनाने में। तो अभी हमने ये क्या डिस्कस किया था, अगर आप फंड का पैसा एसेट में लगाते हैं तो फंड में माइनस करके लिखिए ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। ये हमने यहाँ पे लिख दिया फंड, और 6 लाख करो यहाँ से माइनस, इसको बनाइए 12 लाख। और फिर ऊपर क्या करना है, ऊपर हमने इसको ऐड करना है, कौन सा, ट्रांसफर फ्रॉम पवेलियन फंड, फ्रॉम पवेलियन फंड। ठीक है, पवेलियन फंड। तो मेरा तो जगह की थोड़ी दिक्कत है, आपको थोड़ा, ये हो गया 26 लाख। और भाई पहले आपका एक पवेलियन में जो पीटबा पवेलियन लिखो, और ये पवेलियन पूरा बन गया नहीं सर, आधा अधूरा बना, तो लिखो इसको वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। और यहाँ पे लिख दो 6 लाख। ये बेटा आपको मिल गया 3 में 3। आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पीछे मैंने थ्योरी डिस्कस कर दिया, यहाँ मैंने सम बता दिया, बहुत अच्छी बात। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, तो हमारा ये बेसिक वाला हो गया। अब मैं थोड़ा एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंड का क्वेश्चन करूंगा, फिर मैं एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन करूंगा। जब हमारा फंड अकाउंट नील हो, नेगेटिव आ जाता है तो क्या करेंगे, मतलब उसको नील, उस वक्त हमारा स्टेप क्या रहेगा, वो क्या करेंगे, वो हमारे को करना है। तो हम लोग अब एक करते हैं, हम लोग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन है दूसरा हमारा। नाउ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो रिलेट्स टू स्पोर्ट्स क्लब, show them in income and expenditure account and balance sheet of the club as at 31। मतलब खुद बोल ही रहा है इनकम एक्सपेंडिचर, मतलब इसमें इनकम एक्सपेंडिचर के एलिमेंट है। तो यहाँ पे तो मुझे काफी फंड दिख रहे हैं भैया। एक फंड है आपका स्पोर्ट्स फंड, चलो भाई ओके। एक फंड है आपको जनरल फंड, ओके फाइन ठीक है। और एक नॉर्मल डोनेशन, जनरल फंड भी है, नॉर्मल डोनेशन भी है। तो काफी एलिमेंट्स हैं, हमारा इनकम एक्सपेंडिचर भी बनना है, बैलेंस शीट भी बनना है। तो चलो जी अब हम लोग करते हैं। सबसे पहले मैं इनकम एक्सपेंडिचर भी बनाऊंगा क्योंकि पहले वो बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और ये जैसे प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग होता था, ये भी फॉर द ईयर एंडिंग ही लिखेंगे आप। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये हो गया हमारा ऐसे, और ये ऐसे, ये हो गया हमारा एक्सपेंडिचर, और ये हो गया इनकम, राइट। सो लेट्स रीड, एंड हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी बना लें ताकि हम एक बार जो रखते जाए, जो जहाँ आता है उसको डालते जाओ, कोई बड़ी चीज थोड़ी है ये। तो हम एक बार वो भी कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा बैलेंस शीट का फॉर्मेट साइड में कहीं बना लेता हूँ। लेट्स सी, तो मेरे पास ना स्पेस की कोई कमी नहीं है। आप वीडियो थोड़ा सुन लिया करो फिर लिखा करो, नहीं तो पता चले आपको बार बार पेज फाड़ने पड़ेंगे, एंड एक पेज फाड़ोगे पेज कटेगा, पेज कटेगा, बहुत कुछ हो सकता है। तो प्लीज
सुन लिया करो मेरे को ढंग से, उसके बाद आप नोटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब ये कह रहा है स्पोर्ट्स फंड हमारे पास पहले था, तो मैंने तो आपको यही बताया कि अगर स्पोर्ट्स फंड है तो आपको तो बैलेंस शीट में लिखना है। चलो लिखते हैं। मैं यहाँ पे जनरल फंड, जनरली मैं चाहता हूँ सबसे ऊपर लिखूं जनरल फंड, तो उसके लिए मैंने उसके लिए जगह छोड़ दिया, और जनरल फंड है मेरा 20 lakhs। हमें यहाँ बैलेंस शीट टैली नहीं करना, हमें सिर्फ दिखाना है कौन सी चीजें कहाँ आ रही है, हमें दिखाना है, टैली नहीं करना है। फिर बेटा इट इज योर स्पोर्ट्स फंड में जगह छोड़ा कि स्पोर्ट्स फंड वगैरह में कुछ ऐड वैड भी करना होगा। स्पोर्ट्स फंड, और स्पोर्ट्स फंड को डायरेक्टली आप लिख नहीं सकते क्योंकि उसमें काफी एडजस्टमेंट्स है, एंड दैट इज योर 10 lakhs। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। चलो इसको यहाँ लिखो, एसेट है वो मेरे लिए, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट एसेट है हमारे लिए, एंड दैट इज योर आल्सो 10 लाख। सारे के सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, तो इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट जो है स्पेसिफिक है, तो इसको तो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, इस इंटरेस्ट को, इस इंटरेस्ट को ऐड करना पड़ेगा, एंड दैट इज योर 1 लाख। ठीक है। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, डोनेशन भी हमारे को मिला है स्पोर्ट्स फंड के लिए, काफी सही है। इसके लिए डोनेशन मिला है 4 लाख का। ओके, फिर मेरे को स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड है, एक्सपेंस इवेंट्स है। चलो पहले फंड को टोटल कर लो, हमारा 15 लाख का फंड आ गया। अब खर्चा का हिसाब किताब है, माइनस करो भाई क्या है, स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड, प्राइज अवार्ड क्या, अपना स्पोर्ट्स से रिलेटेड, इसी से खर्च करेंगे, और क्या करेंगे, 3 लाख माइनस करो, 3 लाख माइनस किया मैंने। फिर एक बार थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ, आपके लिए अच्छा रहेगा, तो ऊपर हौच पौच होगा, राइट। हाँ ठीक है, तो अब मैं इसको कर रहा हूँ स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड, फिर है एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, तो मैंने इवेंट्स पे भी खर्चे किए होंगे तो वो भी तो फिर एक्सपेंसेस है, फंड से ही जाएगा, तो दैट इज ऑल्सो 1 लाख। I can see that 3, 4, तो ये 11 lakhs का हमारा फंड आ गया, हमारा 11 lakhs का हमारा फंड कैलकुलेशन का, ठीक है, हमारा 11 lakhs का फंड आ गया। अब आगे मैं देख रहा था जनरल फंड हम लिख चुके हैं, राइट। फिर मैंने देखा क्या है भाई, जनरल फंड लिखे, ब्लैक पेन से लिखूंगा इसको, जनरल फंड लिखिए, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट तो एसेट ही है, तो उसको यहाँ लिखेंगे, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। अब इसका जो इनकम है वो इसमें नहीं ऐड होगा, वो इनकम है हमारे, वो यहाँ आएगा, वो स्पेसिफिक नहीं हुआ ना, वो यहाँ पे जो स्पेसिफिक है वो यहाँ पे ऐड हो जाता है, ठीक है। तो जनरल फंड इन्वेस्टमेंट हमारा क्या है, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट हमारा 20 लाख है, हाँ सारा सारा इन्वेस्ट कर लिया वो लोगों ने। फिर इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड, अब इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इज इनकम, आई विल राइट इट हियर, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड वो है अपना बेटा 2 लाख। और एक और चीज है डोनेशन, ये 50,000, वो भी विदाउट रेस्ट्रिक्शन वाला डोनेशन है, नो इट इज नॉट स्पेसिफिक, तो आई कैन यूज इट फॉर एनी पर्पस। आई थिंक मेरा क्वेश्चन हो गया, राइट। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अब मुझे लास्ट एक बाकी है जो कि मैं एक्सेप्शन मानता हूँ इसका, वो थोड़ा सा कर लेते, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था, अब रीड करते इस क्वेश्चन में क्या है। From the following information of Indian sports clubs, show the amounts of match expenses and match fund in the financial statements of the club for the years ended 31st March 2018 and 31st March 2019. चलो देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में स्पेशल। तो मेरे हिसाब से इसमें इनकम एक्सपेंडिचर का मैं फॉर्मेट बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे अलग चीज क्या है कि मेरा जो फंड है वो नेगेटिव होने वाला है, तो जब नेगेटिव होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें से जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो मैं इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाऊंगा। उसके लिए मैं पहले से इसका फॉर्मेट बना रहा हूँ, बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट बना रहा हूँ आपको। ये मेरा एक्सपेंडिचर है, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, एक्सपेंडिचर, ये रुपीज हो गया, ये मेरा इनकम है, ये मेरा रुपीज हो गया। अब यहाँ पे मैं बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट बना रहा हूँ, सिर्फ हमारे को प्रेजेंटेशन मांग रहे हैं, हमसे कहीं भी ये
पूरा बैलेंस शीट कंप्लीट करने को नहीं मान रहे हो, फुल क्रेडिट क्वेश्चन आएगा, वो आएगा आपका 6 मार्क्स का। ये है आपका लाइबिलिटीज, ये है आपका एसेट्स। डन। चलो अब हम क्या करते हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन में, अब सबसे पहले मैच फंड मैंने ढूंढा, तो फिर आई एम राइटिंग मैच फंड, मैच फंड, और मैच फंड भाई कितने का है, 1,70,000। ओके फाइन। फिर आई फाउंड आई हैव रिसीव्ड डोनेशन आल्सो, अच्छा डोनेशन मिला है मैच के लिए, चलो ये अच्छी बात है, डोनेशन इज ऑफ 90,000। ओके, फिर हमने मैच कराया, टिकट्स भी मिले हैं, तो मैं प्रोसीड्स लिख दे रहा हूँ क्योंकि इतना लंबा वर्ड मैं लिखना नहीं चाहता। आप देख सकते हैं फोर्थ में ये प्रोसीड्स 30,000 लिखा है, आप लोग पूरा लिखोगे, मैं इतना ही लिखूंगा। ठीक है, तो आप हम लोग देखते कि मेरे पास फंड कितना हो जाएगा। I felt it is like 170, 90, 30, 120, 290 हो गया मेरे पास फंड। और भाई मैंने खर्च कितने दिए, 3 लाख। तो अब मैंने देखा कि 290 मेरा पैसा मेरे पास है और 3 लाख मैंने खर्च दिए। ओके, तो आई विल हैव नेगेटिव 10,000 फंड में। तो नेगेटिव नहीं लिखते, नेगेटिव पार्ट को कहाँ लिखते वो मैं बताता हूँ। हम पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे मैच एक्सपेंसेस, मैच एक्सपेंसेस, हम इसको 290 करके नील कर देंगे, और जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसको कहीं और लिखेंगे नील, और यहाँ पे लिखूंगा मैं मैच एक्सपेंसेस 10,000। ये जो 10,000 नेगेटिव वाला पार्ट है वो भाई साहब मैं यहाँ लिखूंगा। ठीक है, तो ये हमारा एक एक्सेप्शनल केस का प्रेजेंटेशन था, इससे ज्यादा फंड अकाउंट में कुछ है नहीं। तो भाई मजे करो, आप क्वेश्चन सॉल्व करो और बताओ कोई डाउट्स है तो।